Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about human brain. Brain is the main control and command center of the body and it is very well protected with the help of certain structures. सबसे बाहर जो structure है वो है skull और cranium, खोपड़ी की हड्डी जो है ये brain को बहुत अच्छी तरह protect करती है और brain और skull के दरमियान 3 layers होती हैं which are collectively called as meninges. Dura mater, arachnoid matter and pia mater. These 3 layers of meninges, they are responsible for protection as well as providing nutrients with the help of blood supply. The general organization of brain is such that it has got gray matter in the periphery and white matter in the center. Gray matter क्या है? All the non-myelinated portion of the neurons. उसमें क्या कुछ आता है? पूरे का पूरा interneuron, sensory neuron और motor neuron की cell bodies. White matter is the myelinated portion of the neurons which include nerve fibers of sensory neuron and motor neuron. Brain में white matter center की तरफ है और gray matter periphery में है, जबकि अगर स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर दिखा जाए तो स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर सेंटर में नहीं होता, उसकी जगह होता है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है पेरिफेरी में. तो इस लिहाज से इन दोनों की अरेंजमेंट ऑपोजिट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की रिगार्डिंग ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर. नाउ वी हैव गॉट हॉलो नर्वस सिस्टम. इसका मतलब क्या है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कैविटी है. ब्रेन की जो कैविटी है वो कहलाती है वेंट्रिकल्स. देयर आर मेनी वेंट्रिकल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ये इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा नजर आएगा. और स्पाइनल कॉर्ड में भी इसकी कंटिन्यूएशन है विच इज कॉल्ड सेंट्रल कैनाल. ठीक है जी, एक ही कैविटी है जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद है और सारी ये कैविटीज ऑल द वेंट्रिकल्स एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एंड दे कंटेन अ फ्लूइड विच इज कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो अंदर से कुशनिंग प्रोवाइड कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ लिक्विड फिल्ड स्ट्रक्चर. नाउ दिस इज द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन. कुछ इससे मिलती जुलती डायग्राम आपकी बुक में है. The brain is divided into basically 3 parts: forebrain, midbrain and hindbrain. forebrain का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो बाहर जो मौजूद है cerebral cortex. Cerebral cortex is divided into 2 main halves which are called cerebral hemispheres. Then there is a thalamus. Below thalamus there is hypothalamus. Hypothalamus is connected with the pituitary gland and there is another structure, hippocampus. अभी थोड़ी देर बाद हम इन सारे पार्ट्स की डिटेल्स पढ़ेंगे. मिड ब्रेन इज अ वेरी स्मॉल पार्ट हियर. आफ्टर मिड ब्रेन देयर इज हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन हैज गॉट 3 पार्ट्स: pons, medulla oblongata and cerebellum. Medulla oblongata is in continuation with the spinal cord. ये 3 चीजें जो हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आ रही हैं, मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन, ये तीनों मिलके कहलाती हैं ब्रेन स्टेम. और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ आती है या ब्रेन से जितनी भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती है ब्रेन स्टेम से जरूर गुजरती है. नाउ फोर ब्रेन का जो पहला पार्ट है जो स्टडी हम कर रहे हैं, थैलेमस. थैलेमस इज अ रिले सेंटर बिटवीन brain and spinal cord. It modifies sensory impulses before they travel to cerebrum. सारी तरह की sensory impulses को modify करता है thalamus सवाए sense of smell को. It is also involved in pain perception and consciousness. Hypothalamus एक छोटा सा हिस्सा है brain का, size of an almond, but it is very important. It links nervous system with the endocrine system. It controls pituitary gland. Endocrine system हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि pituitary gland is the master gland. लेकिन master gland को भी कोई control करने वाला है जो कि है hypothalamus. Hypothalamus also controls certain feelings like rage, pain, pleasure and sorrow. The largest part of the brain and forebrain is cerebrum. It controls skeletal muscles, thinking, intelligence and emotions. It is divided into 2 cerebral hemisphere. अभी पहले मैंने आपको जैसे हमें ये एक साइड का नजर आ रहा है बिल्कुल ऐसे ही पार्ट्स दूसरी साइड पे. The anterior part contains an olfactory bulb which is concerned with the sense of smell and it receives all the sense of smell sensations from the nasal epithelium. Rest of the cerebral cortex, cortex कहते हैं बाहर वाला हिस्सा. अभी जो हमने यहाँ पे ये देखें, ये जो बाहर वाला हिस्सा है जो सारा फोल्डेड है ग्रे मैटर का मीन बना हुआ, that is divided into 4 lobes.
ऑन बोथ हेमिस्फेयर्स। दो हेमिस्फेयर्स हैं, एक राइट हेमिस्फेयर एक लेफ्ट हेमिस्फेयर। हम जब इस तरह ब्रेन को देखते हैं तो हमें एक साइड का नजर आता है, दूसरी साइड दूसरी तरफ। सो जो 4 लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। अच्छा, मिड ब्रेन जो है वो क्या करता है? इट इज अ लिंक बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन एंड इट कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पॉस्चर। हाइंड ब्रेन जो है इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा है विच कंट्रोल्स ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। It also controls reflexes such as vomiting, coughing, sneezing, etc. Cerebellum coordinates muscle movements, while pons assist medulla in controlling breathing. ब्रेन स्टेम को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम में। अच्छा, ये फंक्शंस ऑफ ब्रेन आपकी बुक में एक टेबल भी दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 37। उसमें भी तकरीबन यही बातें हैं, थोड़ी सी इसमें ज़्यादा हैं। याद बहरहाल आपने अपनी बुक वाली करनी है, लेकिन ये भी समझ लें अगर तो बेहतर है। फ्रंटल लोब जो है वो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया हुआ है कि बिहेवियर, इंटेलिजेंस, मेमोरी और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और आपकी बुक में मेंशन किया है कि इट कंट्रोल्स मोटर फंक्शन, यानी जितने भी हमारे स्केलेटल मसल्स हैं पूरी बॉडी के, हर मूवमेंट जो हम कर रहे हैं वो फ्रंटल लोब के जरिए कंट्रोल होगी। एंड इट कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट इन्वॉल्व इन स्पीच। सो स्पीच में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फ्रंटल लोब का। देन यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ कि पैरेटल लोब आल्सो कंट्रोल्स इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, रीडिंग एंड सेंसेशन। और आपकी बुक में डिस्क्राइब किया है कि इट कंटेन्स सेंसरी एरियाज दैट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन। दोनों बातें ठीक है, ये बात भी ठीक है जो आपकी बुक में लिखी है वो भी ठीक है। देन ऑक्सीपिटल लोब इज द विजन सेंटर। आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है कि रिसीव्स एंड एनालाइजेस विजुअल इंफॉर्मेशन। ऑप्टिक नर्व से जो मैसेज आईज का आता है ब्रेन की तरफ वो इधर पहुंचता है बिल्कुल बैक ऑफ द ब्रेन पे, और यहाँ पे वो परसीव होता है। देन देयर इज टेम्पोरल लोब विच यहाँ पे डायग्राम में डिस्क्राइब हुआ है कि बिहेवियर, हियरिंग, मेमोरी, स्पीच और विजन के साथ एसोसिएटेड है। और आपकी बुक में लिखा है कंसर्न विद हियरिंग एंड स्मेल। टेम्पोरल ये देखें कान के करीब वाला एरिया है, तो ये हियरिंग के साथ मेनली और चीज़ों के साथ भी रिलेटेड है। देन दिस इज द ब्रेन स्टेम, जिसमें भी हमने डिस्कस किया कि 3 पार्ट्स हैं, मेडुला, पॉन्स एंड मिड ब्रेन। और ये वाला हिस्सा जो है, क्योंकि इसमें मेडुला और पॉन्स हैं, सो दे आर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग, कॉन्शियसनेस, हार्ट बीट, स्वेलिंग। सेरिबेलम जो हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बाय कंट्रोलिंग द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, आपकी बुक में एक इंफॉर्मेशन पेज नंबर 37 पे ही बॉक्स फॉर्म में दी हुई है हिप्पोकैम्पस से रिलेटेड। ब्रेन में अगर हम देखें तो ये पार्ट हिप्पोकैम्पस है, डीप इन द सेरिब्रम। ये सारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम के बिल्कुल अंदर चले जाए मिड ब्रेन के पास पहुंच के हिप्पोकैम्पस है। फंक्शन इसका क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज। People with damaged hippocampus cannot remember things that occurred after the damage, but can remember things before the damage. अगर किसी वजह से हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए तो डैमेज के बाद वाले जितने भी वाकयात हैं वो उस शख्स को, उस मरीज को नहीं याद होंगे,